Hello, warriors! Welcome back to our channel of Curious Minds. Today, I'm going to discuss step by step registration details for NEET UG 2025. That how you're going to apply for NEET UG 2025. For that, you need to get to the website first. So once you get on the website of NTA NEET UG 2025, this is the official website. Here they give you three options. The very first option where they give in there how to apply, information bulletin, etc. The second column says one has already registered. तो अगर आप पहली बार इस पेज पे आ रहे हैं एंड यू डोंट हैव लॉगिन क्रेडेंशियल्स, क्योंकि जब आप यहां पे जाएंगे दे डायरेक्टली आस्क फॉर लॉगिन क्रेडेंशियल्स. तो अगर आपके पास ये नहीं है, यू नीड टू एक्चुअली गो बैक. You need to first register yourself, register your profile. तो first step is to register your profile. So जब आप यहाँ पे आएंगे as new registration, a page opens up for you. So there are basically three steps. Major तीन step है. First is registration, next is application form, and the last is the fee part. जहाँ पे आपको fee का payment करना है, submissions करना है. Yes. These are some instructions. ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि टाइमलाइन क्या है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, इट्स अ रिक्वेस्ट, बिफोर यू स्टार्ट दिस प्रोसेस आप वो वीडियोस चेक कर लीजिए एंड देन स्टार्ट दिस, बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड दैट यू नीड टू कीप व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी इन व्हाट साइज एक्सेट्रा. यस, सो दीज आर सम स्टेप्स गिवन हियर. सो The NTA is ensuring कि आपने ये सब अच्छे से पढ़ा है by asking you to check this box. तो अगर आपको ये प्रोसेस करना है, आपको ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा saying कि आपने जो ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, I have read it very carefully, and for those students and parents I have made that more easily available on the video, so you can refer my video too for the documentation. Still, I would suggest that quickly glance through the information given here on the page, check box select kariye, and then you go ahead to proceed. My dear students and parents, you have to register on the official website only, and the application is online only. No offline applications are entertained. So see to it that you're going to an official website. जैसे आप जाएंगे, this is the first step. What do you start with? Yes. So let's understand these step by step. कि what we need to fill here. So this is my personal details page. So those who want to apply, जो ये एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो अपने personal details को यहाँ पे fill करेंगे. I'll go one by one. So in the personal details, the first is candidate's name. But यहाँ पे ध्यान रखिएगा, please fill details as printed. आप डिटेल्स कैसे फिल करेंगे, या आपका नाम या जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, you will fill as on class 10th passing certificate और मार्कशीट. तो प्रेफरेबली अपने क्लास 10th मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे डिटेल्स फिल करिएगा. तो वहां पे आपका जो नाम है वही एग्जैक्ट नाम यहाँ पे डालिएगा. सो कैंडिडेट्स नेम, फादर और गार्जियंस नेम, मदर और गार्जियंस नेम यहाँ पे आएगा. फिर कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, अगेन इट हैज टू बी द सेम विच इज मेंशन ऑन अ सर्टिफिकेट. यस, ऑन अ वैलिड सर्टिफिकेट. तो यू सिलेक्ट डे, मंथ, ईयर, एंड देन यू सिलेक्ट द जेंडर, मेल और फीमेल एक्सेट्रा. सो यू विल सिलेक्ट थिंग्स हियर. Once you finish this, I'll again repeat, you keep these information as per your 10th standard certificate. Then you confirm your details. Again, you write down your candidate name, father name, mother name, date of birth and gender. Why they are confirming these things? Because they will not entertain any change further. तो अगर आप ये सब चीजों को चेंज करना चाहेंगे, इसके लिए करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी. सो यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन. सो सी टू इट दैट यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक while filling this. So it's a humble request that parents please sit with your child
after watching this video carefully and then fill the form without any errors. Then you put your present address, the place where you live in. You have given your options here that you can put one line, then the next line, then the locality. So अगर आपका एड्रेस पूरे एक लाइन में नहीं आता है, then you can divide and write it accordingly here. Select country, select state, district and a proper pin code of your area. Again, confirm the address. Please enter all the appropriate addresses here. Then it's a very important step next. ये वाला step. यहां पे दे आर टेकिंग योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेसेस. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेसेस मींस ईमेल एंड फोन डिटेल्स. पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स वही ईमेल वही फोन नंबर को डालिएगा जहां पे आपका वो नंबर और वो ईमेल आईडी एक्टिव है. वो मत लीजिएगा जिसमें आप अपना ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हैं, अरे मैं एक्सेस नहीं करता हूं, वो बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है, फोन नंबर मेरा पहले चलता था वो है ही नहीं. प्लीज डोंट डू ऑल सच थिंग्स. पुट दैट ईमेल आईडी विच इज एक्टिव. रीजन, आपको अपने ईमेल आईडी को और फोन नंबर को ऑथेंटिकेट करना है और ऑथेंटिकेशन के लिए एनटीए उन्हीं ईमेल आईडी और उन्हीं नंबर पे आपको ओटीपी भेजेंगे. तो ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए आपको प्रॉपर ईमेल आईडी डालना है. तो रिपीट हियर, पुट अ प्रॉपर ईमेल एड्रेस, चेक ट्वाइस. कंफर्म करते हुए वापस आप नीचे डालेंगे. Then you'll put a proper mobile number and I would suggest that you keep that number which is active, क्योंकि regular update जो NTA भेजेगा NEET exam related, that the examination centers are decided, admit card is being released, then your forms are released, or the exam is supposed to be on this date. Any information will be again and again coming on the same number. So I would not suggest that you keep your mobile number, student's mobile number. I would suggest that if it's someone's parents' mobile number who's actually checking those details regularly, तो प्लीज वो नंबर यहाँ पे डालिएगा. सेम ईमेल एड्रेस भी वही डालिएगा. So mobile number, then confirm your mobile number, and then you can put one alternate optional number also. That's optional. अगर आपके पास है डालिए, नहीं तो it's okay. You can keep it blank. It's optional. So this part is clear. Then you again confirm your address here. अगर आपका present address, ये present address same है, so if your permanent address here, so this is a permanent address. If this permanent address is same as present, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये checkbox select करना है. Once you select this checkbox, it says it will copy the same. और अगर आपका present और permanent address अलग अलग है तो आप परमानेंट एड्रेस यहां पे फिल करेंगे. तो आपने पहले प्रेजेंट एड्रेस फिल किया था जहां पे अभी आप रहते हैं, और आप परमानेंट एड्रेस यू विल फिल इट हियर. नेक्स्ट, यू विल चूज एन अप्रोप्रिएट पासवर्ड. प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सी टू इट दैट यू रिमेंबर दिस पासवर्ड, क्योंकि आपको अब आगे से जितनी बार भी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करना है, रिजल्ट्स चेक करना है, यही पासवर्ड लगेगा टू लॉग इन. So if you forget this password and if your email ID or mobile number is not working, you might get into a little trouble and into a panic situation. So see to it that you're keeping your password very simple and you're noting it down somewhere. Yes. So put a password. Confirm your password. Security questions में नीचे आपको ऑप्शन रहते हैं. You can select any of the question and you can write an answer for it. तो what is your favorite pet name? Which place did you birth, etc. Birthplace. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस वहां पे होंगे, सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनका नीचे आंसर. तो अब आपने यहाँ पे जो पासवर्ड, यहाँ पे जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर, ये प्लीज नोट डाउन करिएगा. रश में मत भरिएगा. मैं भूल गया, मुझे सिक्योरिटी क्वेश्चन याद नहीं है, उसका आंसर क्या याद नहीं है. प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग. आई होप माय डियर पेरेंट्स आर लिसनिंग टू दिस केयरफुली. So you will put a password, confirm your password,
सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड सिक्योरिटी आंसर, इस चीजों की एक बुक में एक पेपर पे प्रॉपर नोट डाउन करिएगा, उस बुक को उस पेपर को काफी संभाल के रखिएगा। देन यू पुट कैप्चा, कैप्चा सेज दैट यस अ ह्यूमन इंटरफेस इज फीडिंग दिस एंड ही इज agreeing to what all is been given. Once you put a captcha here, then you submit. सबमिट करते ही आपने रजिस्टर कर लिया फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप। नाउ यू स्टार्ट मेकिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। तब आपके पास आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। बहुत सारे स्टेप्स हैं बीच बीच में जहां मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि कीप दैट स्क्रीनशॉट। मेनी ऑफ देम डोंट टेक स्क्रीनशॉट, सीधा होम पे चले जाते हैं, रश मत करिएगा। इसलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि मेरे बच्चों को फॉर्म फिल करते वक्त दिक्कत नहीं हो। तो मोमेंट यू विल सबमिट, वहां पे आ जाएगा थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, दिस इज योर सो एंड सो एप्लीकेशन नंबर, उसको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि बहुत बार ईमेल आता ही नहीं है, मोबाइल पे वो मैसेज आया ही नहीं, तो नाउ आई एम क्लूलेस कि मैं रजिस्टर क्या करूं। क्योंकि एक बार आपने ये स्टेप कर दिया, बेसिकली I'll go again, बेसिकली अगर आपने ये वाला स्टेप कंप्लीट कर दिया एंड वंस यू सबमिट, सो दिस वुड टेक बैक टू होम पेज, और होम पेज पे चले गए मतलब आपने ये वाला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो नाउ एज यू नीड टू गो फर्दर फॉर योर एप्लीकेशन, अब आपको ये सिलेक्ट करना, बिकॉज इट सेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, एंटर योर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड। तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, अब यहां पे आप अपना वो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। तो अगर आपने उस चीज का स्क्रीनशॉट या उसको नोट डाउन नहीं किया होगा, देन आई विल फाइंड मेनी स्टूडेंट स्ट्रगलिंग, सर मैंने एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन नहीं किया, आप क्या करूं, नहीं आ रहा है। और अगर आप लास्ट मोमेंट तक वेट कर रहे हैं, समटाइम्स वेबसाइट्स गेट्स हैंग, बहुत दिक्कत आती है। तो माय सजेशन इज दैट यू प्लीज टेक स्क्रीनशॉट फॉर ईच स्टेप टेकिंग अप हियर। You will be filling all these details on a laptop or a good desktop. मोबाइल पे बैठ के नहीं भरेंगे, डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे जहां पे एक अच्छा इंटरनेट स्पीड है उधर बैठ के भरिएगा। इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। यू विल फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, सॉरी एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो आपने सेट किया था, वापस से आप जो कैप्चा आएगा वो डालेंगे एंड देन यू लॉग इन करते, नाउ यू स्टार्ट योर प्रोसेस। तो नाउ द स्टेप स्टार्ट्स। सो वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्टरिंग आवरसेल्फ। After registration, the new registration, we start with our application. Yes, taking back to those steps. So we are done with this. Now we come to step 4, review page on online registration. तो आपने जो भी यहाँ पे डिटेल्स भरे हैं उसको प्लीज केयरफुली रीड करिएगा, बिकॉज इट गिव्स यू ऑप्शन। वो वहां पे ऑप्शन दे रहा है दैट बिफोर यू सबमिट इफ यू विश टू एडिट, आपको लग रहा है कि नहीं वहां पे मेरे नाम में गलत स्पेलिंग आ गई है, पापा के नाम की जगह पे मैंने अपना नाम लिख दिया है, मेरे नाम की जगह मैंने पापा का नाम लिख दिया है, सरनेम में गलत है, अरे ये 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट के हिसाब से नहीं है, ईमेल आईडी में कुछ गलत हो गया है। तो व्हेन यू रीड दिस केयरफुली, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, तो वापस से रीड करिएगा। रीड करने के बाद इट विल गिव यू अ पेज लाइक दिस, रिव्यू, इट इज गिविंग अलर्ट। ये अलर्ट मतलब आप इन सारी इंफॉर्मेशन को बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, एंड देयर बाय एनटीए डज नॉट एंटरटेन लेटर। तो अगर आप बोल रहे हैं हाँ रिव्यू पेज, देन क्लोज करेंगे एंड देन यू से सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो यहां पे आपको अग्री पे क्लिक करना है। अग्री मतलब ऊपर जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हैं ये करेक्ट है, वैलिड है, ट्रू है, मैं उसको अग्री करता हूं, सबमिट करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या ईमेल एड्रेस पे ओटीपी आ जाए। सो वंस यू सबमिट, आपको नेक्स्ट पेज ऐसा ओपन होगा। सो देखिए ये रहा आपका डिटेल्स। सो व्हाट ऑल डिटेल्स यू पुट,
All the details are visible here with your present address, permanent address, what were the security questions you put down. And आप यहाँ पे देख सकते हैं system has just sent an OTP via text SMS to the given mobile number. तब अगर आपका वो मोबाइल नंबर नहीं चल रहा होगा, you will struggle again with this step. तो see to it कि आप वो वाला ही मोबाइल नंबर डालें जो एक्टिव है. तो आपने जब ये चीज को सबमिट करेंगे, उस नंबर पे एक ओटीपी जनरेट होगा, उस ओटीपी को यहां पे फिल कर दीजिए. जैसे आप यहां पे ओटीपी फिल करते हैं, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड यू आर डन विद द स्टेप. अब आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा. वो एप्लीकेशन नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिएगा. वंस यू डू दैट, generation of application number happens as I told you, and proceeding further for completing the application form. Now you start, because you've registered yourself as you are the new registered student, as you are the new registrations, इसलिए आपने पहला स्टेप किया. Once you generate an application number, then you go to this step. Okay. अगर आप इस स्टेप पे ध्यान से देखते हैं, यहां पे देखिए करंट स्टेटस बताता है आपको कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका हो चुका है और उसका वेरिफिकेशन भी हो गया. मतलब आपने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है, जो मैंने डिटेल्स डाले वो करेक्ट है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड है. तो अगर आप यहां पे देखेंगे, आपका ये स्टेप कंप्लीटेड. अब ये स्टेप्स पेंडिंग है. सो नाउ वी स्टार्ट विद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म. आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा. इसको नोट डाउन करिएगा. जो भी आपका इंडिविजुअल एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, उसको नोट डाउन करिएगा. दिस आर द स्टेप्स व्हिच आई एम शोइंग यू कि आपको कैसे वहां पे दिखाई देने वाला है. Your registration for NEET UG 2025 is completed. Your application form will remain incomplete till you fill all the fields or application form and pay the fee. तो सिर्फ पीछे रजिस्ट्रेशन करने से आपका NEET UG 2025 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी तक तो आपको आगे के डिटेल्स डालने हैं. And this is the application number. So please see to it that you take a screenshot for this also. Yes, moving ahead. एप्लीकेशन स्टेटस पेज विद द समरी ऑफ कंप्लीटेड एंड पेंडिंग पार्ट. तो कौन सी चीजें बाकी है, कौन सी चीजें हो चुकी है, वो आपको अच्छे से यहां पे दिखाई देगा. तो आप देख सकते हैं, दीज आर सम स्टेप्स. आप जैसे ही लॉग इन करेंगे, आपका एक पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाएगा, एनटीए पे, जहां पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपका नाम आएगा, नेम सो एंड सो ऑफ द स्टूडेंट, और आपका एप्लीकेशन नंबर. तो आपको चेक करना है कि जो मैंने एप्लीकेशन नंबर डाला है वो क्या यहाँ पे सेम दिख रहा है, क्या मेरा नाम आ रहा है. Yes. Now, once you do that, these are some steps. Register contact details, personal detail. So now we go to the next. Contact details हो चुके हैं क्योंकि हमने उसको पिछले स्टेप पे वेरीफाई कर दिया. Now we go to personal details. These are the steps pending. So we go ahead and say register personal detail. हम personal detail पे register करेंगे. Personal credentials डालने हैं वापस से आपको यहाँ पे. So, candidate's name, date of birth, gender, father name, mother name, nationality, state of eligibility as per candidate. Which state do you belong to? आपका eligibility का है वो डालेंगे आप यहाँ पे. Then, if you belong to a certain category, तो यहाँ पे आप select करेंगे general, EWS, OBC, तो you'll be selecting things here. If in case the individual belongs to some disability, so you're going to select yes or no here, and you got those detailed certificates or not, वो पे आप यहाँ select करेंगे. Are you diabetic? तो आप yes, no, you'll be selecting there. Place of residence यहाँ डालेंगे. Annual family income को यहाँ पे select करेंगे. You can put it in a range, it's okay. Country of residence. Do you intend to wear customary dresses contrary to the dress code while appearing in NEET UG 2025? Now this step, यहाँ पे, like certain religions where we see in Muslims, they need to wear burqa at the time of examination. तो basically exam के दिन पे एक particular code है, dress code जो NTA ने decide किया है.
बट अगर आप उस ड्रेस के अलावा अपने रिलीजन के हिसाब से कस्टमरी ड्रेसेस पहनने वाले हैं तो उसको आप यहां से यहीं पहले चेक करेंगे. My suggestion would be that you don't get into that hassle of putting those customary dresses. This is my suggestion. Reason, क्योंकि अगर आप वो कस्टमरी ड्रेसेस पे सिलेक्ट करते हैं कि हाँ हम एक्स्ट्रा ड्रेस भी पहनेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज बीन गिवन, सो यू नीड टू विजिट सेंटर क्वाइट अर्ली एंड दे गोइंग टू चेक यू thoroughly as you are going to not follow the norm of those dresses. So they're going to check you thoroughly and then let you in for the examination. So my suggestion would be that if you put a no here and then according to what you still feel. Mode of preparations आप जनरल यहाँ पे डाल सकते हैं. This is not a very strict task. आपको जो यहाँ पे select करना है self study, coaching, you can put anything. That's just for some statistical data. वापस से captcha every time means कि आप ऊपर दी गई चीजों को confirm कर रहे हैं. Save and next. Please ये check कर save और next करने से पहले एक बार information check कर लीजिएगा and then you can go ahead. Once you go ahead, now we go to the next, which says mode of identity verification, page of candidate application form. So we are done with this. Now we go to choose identity. So you can put any of your identity type. आप अपना कोई भी identity document यहाँ पे select कर सकते हैं. आधार, डिजीलॉकर, it could be your passport number, PAN card number, driving license. तो इसमें से जो भी आपका डिटेल्स अवेलेबल होगा या आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा ऑफ द स्टूडेंट आइडेंटिटी, द वंस हु वांट टू अप्लाई, आप वो सिलेक्ट करिएगा. सजेशन इज आधार एंड प्रेफरेबली माय सजेशन वुड बी कि आपके आधार में और आपके 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट में द नेम शुड बी सिमिलर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधार में थोड़ा नाम में चेंज है, ए एक्स्ट्रा है, ई एक्स्ट्रा है, पापा के नाम में कुछ अलग एक्स्ट्रा है. अगर ऐसा कुछ चेंजेस है, माय सजेशन वुड बी आप अपने आधार कार्ड को क्विकली एज पर 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट को चेंज करवा लीजिए अगर काफी बड़ा चेंजेस है. हाँ, सरनेम आगे पीछे है, नेम पापा का नाम बीच में है, वो सब ओके. अनटिल अनलेस देयर इज अ स्पेलिंग चेंज. अगर स्पेलिंग चेंज है, स्पेलिंग अलग है, तो मेरा सजेशन होगा कि आधार में चेंज करवा लीजिए. इसको जल्द से जल्द अपने नजदीकी आधार सेंटर पे या पोस्ट ऑफिस पे जाके चेंज करवाइएगा. सो यू सिलेक्ट द आइडेंटिटी टाइप हियर, देन वंस यू सिलेक्ट एनी ऑफ इट, सपोज यहां पे मैंने जैसे पैन कार्ड नंबर सिलेक्ट किया है, तो आपका पैन कार्ड का जो भी नंबर होगा उसको यहां पे आपको फिल करना है. जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है, आई एम श्योर आपके पैन कार्ड पे एक पर्टिकुलर नंबर है, वो आप फिल करेंगे. सो यू फिल दैट नंबर, कंफर्म दैट नंबर कि हाँ यही नंबर है मेरे पैन कार्ड का. यू सिलेक्ट द कैप्चा एंड सबमिट. तो आपने ऊपर अपने नाम और डिटेल्स डाले और यहां पे आपने डाला अपना एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, इंश्योरिंग कि हाँ मैं वही बंदा हूं जो अप्लाई कर रहा हूं. तो इट शुड नॉट वेरी. जैसे यहां पे महेश अप्लाई अगर कर रहा है, फॉर एग्जांपल द डॉक्यूमेंट्स which is a valid document, Aadhaar, PAN card, passport, it should be on the name of Mahesh only. It should not be on someone else's name. Then clear cut rejection would be there. तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे. You go to submit and next, मतलब आपने अपने identity details को fill कर दिया. तो आपका first step complete, second step complete, third step complete. Now we go to the next step. Entering the APAR ID of candidate. APAR आईडी को लेके भी मैंने एक वीडियो बनाया था. अगर आपको इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है तो प्लीज चेक दैट वीडियो आउट वेयर आई हैव गिवन हाउ कैन यू जनरेट APAR आईडी. एक्चुअल में जो बच्चे ऑलरेडी स्कूल में, अगर ये साल स्कूल में है and they're going to appear NEET UG 2020 NEET examination, my bad, NEET examination in later years 26 27, और शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका APAR आईडी ऑलरेडी स्कूल ने जनरेट कर दिया है. जो ये साल कॉलेज में हैं उनका भी APAR आईडी कॉलेज ने जनरेट कर दिया है. बट जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं वो कहां से लाएंगे अपना APAR आईडी, तो वो कैसे बनाते हैं डिजी लॉकर पे, मैंने उसको डिटेल वीडियो डिस्कस किया है. चेक आउट दैट वीडियो ऑन क्यूरियस
Minds YouTube channel which is there, and I'll surely share the link here which you can check that Aapar ID ka details also. So if you have that Aapar ID, if you don't have that Aapar ID, it's okay. Personal suggestion बना लीजिए, preferably बना लीजिए, but अगर आपके पास नहीं है, you can select no also there. But my suggestion would be that if you can create that, check out that video and you can put those details accordingly. So that's Aapar ID. So once you select Aapar ID, then we go to the next step, register exam and exam center details. ये भरते वक्त प्लीज वापस ध्यान दीजिएगा. So you're applying for which examination आप सिलेक्ट करिए. Obviously हम नीट यूजी एग्जाम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. यू विल सिलेक्ट दैट. क्वेश्चन पेपर आप कौन से मीडियम में देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बिकॉज़ देयर आर 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल. तो आप अपना मीडियम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन यू नीड टू सिलेक्ट विच स्टेट और विच सेंटर यू विश फॉर. तो आपको किस जगह पे सेंटर चाहिए. तो आपको वो 3 ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि मैं यहां नहीं तो यहां नहीं तो यहां अपने सेंटर को आई वुड प्रेफर माई सेंटर. तो आप सबसे पहले वो सिलेक्ट करिएगा जो आपके नियर बाय विसिनिटी में है. जैसे इट कुड बी मुंबई. देन द नेक्स्ट यू कैन सिलेक्ट इज वेस्टर्न मुंबई, और अगर आपको सेंट्रल मुंबई डाला तो सेंट्रल मुंबई डाल सकते हैं, या फिर आप थर्ड ऑप्शन में पुणे डाल सकते हैं. जैसे भी आपके लिए जो नजदीक पड़ता है उसके हिसाब से डालिएगा. प्लीज सी टू दैट इज सिलेक्टिंग सेंटर केयरफुली. दे गिव प्रेफरेंस टू द फर्स्ट सेंटर कि वो कोशिश करेंगे कि आपको फर्स्ट सेंटर पे अकोमोडेट कर दे. बट अगर फर्स्ट सेंटर पे उनके मैट्रिक्स फुल हो जाता है, वहां पे स्टूडेंट का कैपेसिटी फुल हो जाता है, देन दे वुड शिफ्ट यू टू द सेकंड चॉइस. तो जो भी आप यहाँ पे चॉइसेस डालेंगे, सी टू दैट इट इज इन द विसिनिटी कि आप वहां पे पहुंच पाए. ऐसा ना हो कि आप मुंबई में रहते हैं और आपने गलती से वहां पे साउथ का कोई एक स्टेट सिलेक्ट कर दिया जहां आपके लिए जाना डिफिकल्ट होगा, जहां पे आपके रिलेटिव्स या कोई रहते नहीं है. तो प्लीज डोंट मेक मिस्टेक एट दिस पार्ट. सिलेक्ट करिएगा सिटी कौन सा है वो सिलेक्ट करिएगा. देन यू नीड टू पुट योर फादर और गार्डियंस ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड क्वालिफिकेशन. वापस आप कैप्चा फिल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट. आप देखेंगे हर स्टेप पे दे आर टेकिंग वेरिफिकेशन. सो टुमारो यू कांट से दैट नो दिस वाज फॉल्स, आई डिडंट न्यू, ये गलती से आ गया. सो एवरीवेयर यू हैव टू रिव्यू and then you're saving it, so you're not just randomly filling details. तो ensure कि आप सारे information properly fill कर रहे हैं. So we're done with register exam and exam center details. Now we go to the next step, step number 12, entering the qualification details of the candidate. So now we come into the qualification details of the candidate. This is with respect to 10th standard. So 10th or equivalent qualification detail, pass status. So obviously your passed examination, you'll fill that. Year of passing, आपने कब अपने 10th standard को पास किया वहां पे सिलेक्ट करेंगे. Then qualifying exam कौन सा है, place of school, आपका स्कूल कहाँ था, type of school और college, वहां पे आपको नीचे details आ जाएंगे, need to select there. Then qualifying examination states, obviously if you're Mumbai, you'll put Maharashtra here. Then qualifying examination district, so you'll have Mumbai or Palghar district accordingly where you nearby stay. What was your board? Is it a SSC board, ICSE board, CBSE board? So you'll get an option again here. Result mode क्या था आपका, रोल नंबर, जो आपका वहां पे सीट नंबर दिया गया है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे. आपके कॉलेज का नाम फिल करेंगे या स्कूल का नाम फिल करेंगे, एंड देन द पिन कोड. So this should be your as per your 10th standard marksheet. तो आपको 10th standard marksheet लेके बैठना है. वहां पे आपका जो भी रोल नंबर था, जो आपका सीट नंबर था, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है. आपके स्कूल का या कॉलेज का नाम यहाँ पे डिटेल डालना है, उनका पिन कोड डालना है. 12th standard you're going to appear, correct? So there are students who are appearing for 12th standard this year in 2025, or there are few students who have already appeared their 12th standard earlier. तो जिन्होंने अपीयर कर चुके हैं वो अप्रोप्रिएट डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, और जो अभी अपीयर करने वाले हैं दे गोइंग टू सिलेक्ट पास स्टेटस. तो गोइंग टू से अपीयरिंग, वहां पे एक ऑप्शन आएगा अपीयरिंग, और जिसने दे दिया है दिल पुट पास और अकॉर्डिंगली. एंड आई होप एवरीवन नोज देयर इज अ क्राइटेरिया
फॉर यू टू क्वालिफाई 12 स्टैंडर्ड के लिए। सो नीट यूजी 2025 में अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे जाए या एडमिशन डिटेल्स आगे जाए, सो देयर इज अ पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन, पर्टिकुलर परसेंटेज क्राइटेरिया। सो यू नीड टू मीट दैट क्राइटेरिया ऑफ योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का टोटल एक पर्टिकुलर रेंज होना चाहिए, वो अगर है तो ही आप एडमिशन राउंड में आगे जा पाएंगे। तो सी टू इट दैट यू हैव दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया देयर। ईयर ऑफ अपीयरिंग, qualifying exam, place of school, type of school, examination state, qualifying examination district, school board, what board it was again, result mode, roll number वापस से आप वो डालेंगे जो आपके what do you say मार्कशीट पे होगा, those have appeared, और जो ये साल अपीयर कर रहे हैं वो अपने एडमिट कार्ड पे, आपको हॉल टिकट मिला है, हॉल टिकट पे जो रोल नंबर है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, आपके स्कूल कॉलेज का नाम, पिन कोड यहां पे डालेंगे, एंड देन यू पुट कैप्चा अगेन, सेव एंड नेक्स्ट। सो आई होप यू आर क्लियर टिल दिस स्टेप। यस, वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। सो एज यू कैन सी आई एम एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं। सो प्लीज बी ट्यून्ड इन हियर फॉर क्यूरियस माइंड्स चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नेक्स्ट स्टेप 13. Entering additional details pertaining to twin status and previous NEET UG examination. I'll explain what does this mean. तो additional details में आपको यहाँ पूछा जा रहा है, Are you a twin and both applying? तो पता चला हम twins हैं, हमारे faces एक जैसे identical twins है और हम apply करने वाले हैं, so they should be knowing कि हाँ ये twins है और दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं हो that the form gets rejected. Yes. So if it's a twin status, you need to select here. Additional details में have you ever appeared in the NEET UG examination? So those who are reappearing, जो वापस से अपीयर कर रहे हैं वो अपने डिटेल्स को यहाँ पे फिल करेंगे, और जो फ्रेशली अपीयर कर रहे हैं you will have an option no, I am appearing for the first time, so you can select that. Place of birth, state and district. So this is your date, place of birth, where did you take birth? Again you put a captcha, save and next. So you have done with the step which is 7th here, registering additional details. अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे जो बोलता है रजिस्टर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। तो कोई इमरजेंसी में अगर आपके किसी भी पेरेंट को, गार्डियन को कनेक्ट करना है तो ये नंबर, ये ईमेल आईडी पे उनको कनेक्ट किया जाएगा। सो सिलेक्ट कंट्री कोड, तो ऑब्वियसली इफ इट्स इंडिया तो इट विल बी +91। मोबाइल नंबर डालिएगा, उनका ईमेल एड्रेस डालिएगा, यहां पे वापस से कैप्चा दैट यू आर कंफर्मिंग व्हाट इज गिवन हियर, सेव एंड नेक्स्ट। सो डन विद रजिस्टरिंग इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 15, एज आई एम गोइंग वन बाय वन टू यू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इमरजेंसी डिटेल्स। तो अभी आपने जो डिटेल डाला है क्या वो करेक्ट है? पता चला देयर इज सम इमरजेंसी एंड दैट नंबर इज नॉट वैलिड, तो दे विल ऑथेंटिकेट दैट। So if you wish to edit the mobile number, then click on register emergency contact details once again, because जो भी आपने नंबर दिए हैं आपके पेरेंट के, गार्जियन के विद रिस्पेक्ट टू इमरजेंसी कनेक्ट करने के लिए, वो भी ऑथेंटिकेट किए जाएंगे। So there will be OTP sent on mobile, OTP sent on email of that particular individual. तो प्लीज वो डालिएगा जो वापस एक्टिव है। वुड प्रेफर दैट आप अपने पापा मम्मी का डाल दीजिएगा यहाँ पे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। Verify and next. So you're done with 8th step according to the form details. We go to the next step, according to me, step number 16. Now we start uploading the necessary documents by the candidate. और इसके लिए मैं एक और प्रीवियस वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर लिया था कि ये सब डॉक्यूमेंट्स को आप प्री रेडी करके रखिए, ताकि जब आप फॉर्म फिल करने बैठे तब आपके लिए कोई सरप्राइजेस नहीं हो, ओ अरे ये मेरे पास नहीं है, इसको कैसे भरना है, एक्सेट्रा। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो मेरा नहीं देखा है, प्लीज सी टू दैट, चेक दिस वीडियो आउट बिफोर यू गो फॉर दिस स्टेप। यस, सो नाउ यू पुट ऑल द डिटेल्स, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सो द फर्स्ट इज फोटोग्राफ, where 80% of your face should be visible, no mask on the face, white background के white background होना चाहिए पीछे, ears properly visible होने चाहिए, that's your passport size and a postcard size photograph होना चाहिए,
तो यहाँ पे आपको सेव करना अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन द साइज रेंज व्हाट दे गिवन इज 10 KB to 200 KB. JPG फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट चलेगा. प्लीज चेक दैट वीडियो आउट बिफोर यू गो टू द स्टेप. यस, तो आप यहाँ पे चूज फाइल करेंगे, आपकी एक पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाएगी जहां पे आपने सब चीजों को सेव करके रखा है. तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं और जितने भी आपके लिए एप्लीकेबल है उन सबको एक पर्टिकुलर फोल्डर में, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव कर लीजिए ताकि अपलोड करते वक्त आपके लिए इजी हो जाए. सो यू चूज हियर, यू अपलोड दैट. अपलोड होगा, यहां पे आपको दिखाई देगा, वो ओपन करके चेक करिएगा क्या वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपर्ली. अगर वो प्रॉपर्ली नहीं दिख रहा है, माय सजेशन होगी दैट यू पुट अ लिटिल मोर KB, एक थोड़ी बड़ी साइज डालिएगा फाइल की ताकि वो और क्लियरली विजिबल हो. लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इंप्रेशन, यहां पे आपको वापस से चूज फाइल, यू नीड टू सिलेक्ट. तो दिस हैज टू बी डन फॉर ऑल. सिग्नेचर डन फॉर ऑल. सिग्नेचर हैज टू बी द सेम, क्योंकि आप उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में भी साइन वापस से करेंगे एंड दे विल मैच कि क्या जो सिग्नेचर ये सबमिट किया था एप्लीकेशन फॉर्म पे टाइम पे और जो बंदा यहाँ पे आया है क्या ये सिग्नेचर मैच कर रहे हैं. तो सी टू दैट यू पुट योर करेक्ट सिग्नेचर. सिग्नेचर यहाँ पे आप चूज फाइल एंड अपलोड करेंगे. तो दीज आर इन द JPG फॉर्म, आप देखेंगे सब JPG फॉर्म में. देन पोस्टकार्ड साइज फोटो, अगेन यू विल पुट चूज फाइल हियर, अगेन दिस इज इन द JPG फॉर्म. तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबके लिए एप्लीकेबल है. Yes, so that was about the passport size photograph, left and right hand thumbs and finger impression, signature and postcard size photo. Now we go to the next which says class 10 mark sheet. Obviously ये भी सबने दिया रहेगा, तो class 10 mark sheet पे भी आपका नाम सेम होना चाहिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. तो you're going to upload that document here. That will be in the PDF form. तो आप देखिए PDF फॉर्म में, तो ये सब चीजें आप JPG फॉर्म में रेडी करेंगे, ये PDF फॉर्म में रेडी करेंगे. 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, तो दिस इज मार्कशीट, दिस इज सर्टिफिकेट. तो दो होते हैं, एक आपका मार्कशीट होता है, एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है. तो आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है, यहाँ पे आपको पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है. अपलोड प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस का प्रूफ. सो एनी डॉक्यूमेंट, सो आधार कार्ड पे अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है और वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे अगेन इन द PDF फॉर्म. इफ यू आर फ्रॉम सम अदर बोर्ड, अगर आप SSC बोर्ड से नहीं है या आपका परसेंटेज में नहीं है, वहां पे आपके कोई ग्रेड्स है, उसको कन्वर्जन करवाइए अपने स्कूल से एंड यू नीड टू पुट दैट डॉक्यूमेंट हियर. यू नीड टू पुट दैट डॉक्यूमेंट हियर. देन आइडेंटिटी प्रूफ, तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं, जो आपने आइडेंटिटी डाला है, जैसे अगर आपने पैन कार्ड डाला है, अगर इफ यू हैव पुट डाउन योर पासपोर्ट इन द प्रीवियस स्टेप और इफ यू हैव पुट योर आधार इन द प्रीवियस स्टेप, my suggestion that you would put that document here again in the JPG form. तो आप देख सकते हैं आपका आइडेंटिटी प्रूफ JPG फॉर्म में है, 10th का कन्वर्जन मार्कशीट PDF फॉर्म, पासिंग सर्टिफिकेट PDF फॉर्म, मार्कशीट PDF फॉर्म एंड बाकी आपके फोटोग्राफ्स से सिग्नेचर्स इन द JPG फॉर्मेट. तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिए हैं, प्लीज उसी के हिसाब से पहले चीजों को रेडी करिए बिफोर यू स्टार्ट विद दिस स्टेप. आई डोंट वांट एनीवन टू मेक हैसल एंड पुट रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हियर एंड देयर. आफ्टर पुटिंग दिस, रिव्यू पेज, अगेन दे गिव यू चांस टू रिव्यू. चेक कर लीजिए कि क्या क्या आपने जहां पे डिटेल्स डाले क्या वो करेक्ट है कि नहीं. सो यू गोइंग टू रिव्यू द पेज. प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट. If you wish to change, please go to the links provided on the left side. जो भी आपको चेंज करना, प्लीज चेंज कर सकते हैं before it has been finally submitted. Close. Then you check all your details. So it says all these are done. Email ID verification है, आपका फी पेमेंट का पार्ट पेंडिंग है. अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे and if you are fine, your email is yet to be verified. तो अगर आप बोलते हैं सब कुछ करेक्ट है, now let me verify my email also, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे एक OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है. रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, एंटर कैप्चा, सबमिट एंड गेट OTP. तो आपके उसी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे फिर से एक OTP आएगा. यू नीड टू पुट दैट OTP एंड वेरीफाई. So this ensure कि अब आपका email verification भी हो गया है. So now we are left with last part. Yet the form is not submitted. We are left with the last part of fee payment. So that's current status. आप देखेंगे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. इसी तरीके से आपको दिखना चाहिए. अब जहां नहीं दिख रहा है मतलब वहां पे स्टेप पे अभी भी कोई इश्यू है.
अब इसके बाद you will not be able to make any changes much if you're not going to pay here. So if you're going to pay, then you're not going to make any change. So still, if you wish to make any changes in any of these areas, yet you got an option of edit application. If everything is correct, then as per your category, general, EWS, NRI, etc., you will need to make a payment here. So pay examination fee. Before you go to the payment part, my suggestion would be that you take a screenshot for this area, ensuring कि हाँ मैंने ये सब steps complete किए थे. Then you go to the fee payment. You select online payment. No offline payment. So online payment, proceed for the payment. जैसे आप आगे जाएंगे, you'll get an option something like this. Student का नाम आएगा यहाँ पे, आपका एप्लीकेशन नंबर आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा. चेक करिए कि क्या आप अपने लिए ही पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं. जो भी आपका अमाउंट है और आईडी यहाँ पे जनरेट होगा, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. दिस इज व्हाट माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू लुकिंग एट दिस वीडियो. सिलेक्ट एनी ऑफ द प्रोवाइडर जो भी आपके लिए इजी है. डिस्कस दिस विद योर पेरेंट्स एंड दे विल हेल्प यू आउट. आप सिलेक्ट करिए एंड देन प्रोसीड फॉर पेमेंट. जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करते हैं, आपके उस पर्टिकुलर गेटवे पे एक मैसेज आ जाएगा. आपको आपका पेमेंट कंफर्म करना है, बैंक ऑथेंटिकेशंस करने हैं, और एक बार होने के बाद फाइनली यू विल हैव अ कंफर्मेशन पेज. आफ्टर पेइंग द फी, आपका जब ये कंफर्मेशन पेज आता है, दैट एंश्योर्स दैट यू हैव applied for NEET UG 2025. So see to it that you're submitting all the steps properly, and thereby here we at Curious Minds are discussing these step by step registration details to you for NEET UG 2025. So आपको इस तरीके से पूरा डिटेल मिल जाएगा. You can see here, check all these. आप देख सकते हैं आपका इंप्रेशन, आपका फोटोग्राफ इस तरीके से यहाँ पे होगा. Everything, all the details that yes you made a payment. आपका पेमेंट भी हमको मिल चुका है. तो पेमेंट का भी, पेमेंट जो कंफर्मेशन, उसका एक स्क्रीनशॉट रखिएगा कि हाँ मेरा पेमेंट इस बैंक से कटा था. दिस इज ऑल फॉर सेफ पर्पस, क्योंकि हम रजिस्टर अभी कर रहे हैं, एग्जाम बाद में आने वाला है, एडमिट कार्ड बाद में आने वाला है. बीच के गैप में अगर वो मैसेज हमसे घूम जाता है, हमने उसका ध्यान नहीं रखा है, देन बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रैक. तो माय सजेशन इज दैट ईच स्टेप पे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तो इसको आप सेव करिएगा. आपने जो पीछे पेमेंट किया है उस पेमेंट रिसीप्ट को भी सेव करिएगा, अपने बैंक के मैसेज को भी सेव करिएगा कि हाँ मैंने 1700 का पेमेंट, मैंने 1900 का पेमेंट, 9500 का पेमेंट, सो एंड सो फोर इस बैंक से NTA के वेबसाइट पे किया था. This is how the form would look like. Yes, that's the confirmation page you see here. So customer ID, payment mode is online, they will show you here. So finally, once you're done with this, you're done with your application form. तो आपको इस application form को सेव करके रखना है. इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है before you start this process. And with this we come to an end of step by step registration for NEET UG 2025. Thank you for listening to us patiently. Wish you a good day. Take care and best of luck for the examination. Bye bye. Take care.